आप मुझे बताइए, आज के ज़माने में किसको नहीं पता है कि योगा बहुत फ़ायदेमंद है? सबको पता है। सबको कितने पता लोग करते हैं? बस बैठ के मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, अरे भाई इसने बहुत अच्छा पोस्ट कर दिया, उसने बहुत अच्छा पोस्ट कर दिया। है। इस टॉपिक पे तो खास करके तीन लेडीज और तीन माएं अगर बात करें ना तो हम दिन भर बात कर सकते हैं। Hello everyone and welcome to another very interesting episode of New Era Bonds. And our today's topic is also, आज का भी जो हमारा टॉपिक है बहुत बहुत ही रिलेटेड है आपकी रेगुलर आपकी डेली लाइफ से बहुत रिलेटेड है हमारा आज का टॉपिक भी बिकॉज वी विल टॉक ऑन योगा। एंड व्हेन वी से दैट वी विल टॉक ऑन योगा, लोगों को लगेगा अरे योगा पे तो इतना सब कुछ है, ये लोग क्या अलग बात करेंगे, राइट? सो गाइज, स्टे कनेक्टेड टू अस टिल एंड ऑफ द वीडियो। सो आज मेरे साथ हैं मेरी फ्रेंड कृति एंड हमारी Hello स्पीकर everyone. पारोमिता। हाय पारोमिता, हाय कृति। हाय हाय अंकिता, हाय कृति। हेलो। Welcome Paromita. थैंक यू। यस। सो गाइज, आई वाज टॉकिंग कि आज के एपिसोड में क्या अलग है योगा के बारे में। सो अलग ये है कि योगा को हम लोग तीन तीन उसके फेजेस में देखेंगे आज कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योगा बिफोर प्रेगनेंसी, व्हाट यू कॉल प्री नेटल, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम योगा से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, प्लस पोस्ट नेटल या डिलीवरी के बाद हम योगा से क्या बेनिफिट ले सकते हैं। सो गाइज, इफ यू हैव फीमेल्स at your home, if you are a female, if you are a sister, mother, आप जो भी हो, आपके लिए एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एंड बिफोर गोइंग अहेड, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई विल लाइक टू इनवाइट आवर गेस्ट पारोमिता। हाय पारोमिता। हाय हाय अंकिता। ओके, सो before I start with yoga, let me say I was born and brought up in Shillong, Meghalaya, and then I did my engineering from UP. And post that, I was earlier working in Bombay. Currently, I'm working in Bangalore. And yoga has been a passion. I would say it's comparatively very new in my life. It's 2020, but then it has become a very integral part of my life. And days when I'm not able to do yoga for some or the other reason, I feel very restless. I just need to spend, even if it's 10 minutes, I need to spend it on the mat doing something or the other. So, yeah, and then I did my certifications because I wanted to um, spread this knowledge that I'm gaining from yoga. Earlier, I was just going through YouTube videos or Instagram, just taking free knowledge, basically whatever was available. But then later, I thought that I need to get into the depth of it to actually incorporate it in my life, and that's why I went through the certifications. And now, earlier, I was taking online classes, but because of my schedule now, which we will talk going forward, I'm just taking offline classes in the morning. So yeah, that is how I'm still connected with yoga now. So I got married in the year 2020, and it was just a month before the lockdown. I was not working out. I had always been someone who was very lean and thin, so I did not feel the need to work out. Like, I know that sounds very superficial because it's not just about weight loss, but it did not come from within. Um, During my marriage, there was a lot of stress on me because I didn't want to put a lot of burden on my father. So there were many things which I was planning, getting things, buying things. Plus, it was an interstate, inter-regional marriage. So making sure that everything happened smoothly because we had to convince our parents to get married. I gained a lot of weight during that time. I was my heaviest in my wedding, actually. And then I saw my cousin. I am very much inspired by her journey, which is what actually caused me to take up the yoga journey. तो उनको पीसीओडी था, प्लस उनने बहुत वेट गेन भी कर लिया था बिकॉज ऑफ पीसीओडी। तो शी वॉज हैविंग अदर इश्यूज जो पीसीओडी की वजह से होते हैं। So she brought a change in her life, in her diet, in her yoga routine. She actually brought yoga in her life. She was very diligently practicing it every day, and I saw the positive changes in her. और वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। तो एक बार जब मैरिज इज डन, अभी लॉकडाउन शुरू हो गया, पूरा दिन घर में बैठना है, सो आई थॉट लेट मी टेक इट अप. And earlier, I used to just do it on my own. Then on 21st June 2020, which is the International Yoga Day, I thought of sharing it in social media. And I got a lot of likes, a lot of very positive reactions, and that was very motivating for me. And then I started doing it on a regular basis. Slowly, slowly, I just fell in love with it. And that is how I started this journey. Then the year after that, so 2021, I thought I want to start teaching. And that's how I got the certification done. And I started with my online classes. Then I took a break of a year
because as per the topic that Ankita already shared, I was expecting during that period. And then now I've started again, but I'm not able to give time to online because my office has also started. I'm just taking offline classes for now. So that's like my journey with yoga till date. वाह। हम्म। सो इंडिया में जैसे कि बहुत लोगों की जिंदगी कोविड ने बदल दी थी। सो व्हाट पारुमिता टोल्ड अस दैट उनकी जिंदगी भी कोविड ने बदल दी बिल्कुल। Yes, विच इज positively. पॉजिटिवली, दैट्स वेरी हाँ, गुड। एंड जब लाइक्स और फॉलोअर्स की बात करें तो प्लीज आप इनका इंस्टाग्राम पेज भी जरूर चेक करिएगा जाके। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे। एंड शी इज हैविंग अबव 44 के फॉलोअर्स इन हर इंस्टाग्राम अकाउंट। सो एंड आप चेक करिएगा, अमेजिंग अमेजिंग yoga poses, amazing reels, and it is a very motivating page which can really help you in your yoga journey. So guys, please go and check the page once. सो परमिता, जब आप कह रहे थे कि यू जस्ट फेल इन लव विद योगा, तो जो आपके आईज में जो स्पार्क था, उससे मैं इतनी इंस्पायर हुई। और एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जैसे इंडियन ओरिजिन से होते हुए भी हम अपनी लाइफ में योगा को उतना प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। राइट, हमको लगता है कि योगा सिर्फ आसनाज है, मेडिटेशन है या प्राणायाम है। ओके, बट एक्चुअली इसका एक बहुत अंदर डीप मीनिंग भी है कि हाउ इट्स लाइक यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। सो थोड़ा yes. सा आप व्यूअर्स को ये बताना चाहोगे कि व्हाट इज योगा, और Mhm. क्यों हम लोग उसको, जब तक हमारे लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं आता या कोई बीमारी नहीं आ जाती, हम उसको एक डे टू डे प्रैक्टिस नहीं बनाते। तो हाउ Mhm. वी कैन मेक अवेयर पीपल दैट योगा इज दिस एंड वी शुड प्रैक्टिस इट डेली इन अ सस्टेनेबल वे। हाँ, द डेफिनेशन जो आपने दिया, यूनियन ऑफ सोल, बॉडी एंड माइंड, दैट इज योगा डेफिनेटली। बट उसका मतलब वो बहुत बुकिश तरीके से है। जब तक आप एक्चुअली नहीं करोगे, आपको नहीं समझ आएगा कि हाउ इज इट कनेक्टिंग द सोल, बॉडी एंड माइंड। सिंपली पुट, अगर आप जैसे नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, लोगों को लगता है जिम जाते हैं फास्टर चेंजेस दिखते हैं। वाई डू पीपल, मतलब देखना, आप साल के स्टार्टिंग में जिम बहुत जाते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं। योगा बहुत स्लो है, धीरे 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 आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। जिम में आपको उसके हिसाब से फास्टर बेनिफिट्स मिलेंगे, तो इसलिए लोग ज्यादातर जाते हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि जिम अच्छा नहीं है, यू डेफिनेटली डू इट, गुड फॉर यू, स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए करो, वेरी गुड। बिकॉज मे बी आप जो स्ट्रेंथ जिम में कम टाइम में गेन करे, वो योगा में ज्यादा टाइम लग रहा है। बट अगर आप मेंटल पीस की बात करते हैं, तो फ्रॉम माय पर्सनल पॉइंट, मुझे योगा वो बहुत बेनिफिशियल लगा। एक तो देर इज नो कंपटीशन इन योगा कि मैंने आज इतना किया, मैंने आज इतने रेप्स मारे, कल मुझे इतने और रेप्स मारे हैं, आज मैंने इतना वेट उठाया, कल मुझे इतना। इट्स नो, इट्स जस्ट योर बॉडी। एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इज योर बॉडी। इट्स अ कॉम्पिटिशन विथ यू कि आज मैं इतने देर तक होल्ड कर पाई। बट वो पता है, वो जो एक अचीवमेंट होता है, द वेरी वाई आई स्टिक टू योगा वॉज बिकॉज जब, सिंपल एक मैं बात बताती हूँ, जब मैं पहली बार चक्रासन करती थी, तो वो मुझे लगता था कि मैं एक उल्टा टेबल बन गई हूँ, वो चक्रासन का फील ही नहीं होता था। डाउन द लाइन जब मुझे फाइनली वो व्हील पोज हुआ, तो आई यूज टू शूट अ वीडियो एंड देन आई टू कैप्चर, बिकॉज दैट इज वॉट यूज टू मोटिवेट मी। मैं हमेशा प्रोग्रेस चेक करती थी। वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आया, बिकॉज आई वॉज डूइंग इट ऑन माई ओन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम देख के, टेक्निक्स, ट्रिक्स समझ के आई वॉज प्रैक्टिसिंग। तो वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, दैट वाज बियॉन्ड फॉर मी। एंड उसके साथ अलोंग विद दैट जो मेंटल रेस्ट, एक टेम्परामेंट का भी चेंज है। जो एग्रेशन होता है, टायर्डनेस होता है, या फिर आजकल जैसे बहुत सारे काम हम लोग को एक साथ देखने पड़ते हैं। इवन इफ यू आर इन द आईटी फील्ड, आपको घर के काम भी देखने हैं, आपको ऑफिस का काम भी देखना है। उस टाइम पे तो आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, बट वो सबसे बहुत स्ट्रेस हो रहा था। कीपिंग पीपल हैप्पी अराउंड यू, बहुत स्ट्रेस हो रहा था। तो वो चीज़ ना, योगा से ऐसा नहीं कि काम कम हो गया, बट आई वॉज एबल टू हैंडल इट बेटर। फिर एक और बात करते हैं गुस्से की। बहुत लोगों को लगता है कि अगर योगा करते हो तो गुस्सा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, वो एक इमोशन है, उसको रखना है। बट आप गुस्से को रिएक्ट कैसे करते हो? Response is what yoga will teach you. Reaction is what normally people have. So we should always respond to situations. तो ये सब मुझे योगा से करते करते सीखा है। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत किताबें पढ़ लिया है, मुझे करते करते ये चीज मेरे अंदर आया है कि दिस इज हाउ आई शुड बी। कुछ चीजें अगर बॉदर करे, जस्ट ब्रीद आउट, वो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही मेरा टेम्परामेंट में बहुत डिफरेंस मुझे फील होता है। हम लोग सोचते कि यार आज टाइम नहीं है। मतलब मेरा भी स्टार्टिंग ऐसा था कि मेरे पास आधा घंटा नहीं है, मेरे पास एक घंटा नहीं है, जरूरत ही नहीं है। 10 मिनट है, बैठो, मेडिटेशन ही कर लो, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही कर लो, हो गया।
यू आर डूइंग योर पार्ट, धीरे धीरे यू विल फॉल इन लव विद इट एंड देन यू विल एक्सटेंड इट। तो मेरे साथ दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन अबाउट व्हाट योगा इज फॉर मी। यस। सो गर्ल्स एंड गाइस जिनके भी बहाने होते हैं ना, आपके पास टाइम नहीं है, सो साफ साफ अभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बोल रहे हैं कि 10 मिनट भी इनफ है। तो अगर आप बोल रहे हो टाइम नहीं है, तो वो डेफिनेटली एक एक्सक्यूज है। तो उसको दूर करो, फटाफट स्टार्ट करो आप लोग। And since we're talking about prenatal thing, so you think कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है पारोमिता, उसमें कहीं ना कहीं योगा हेल्प्स उसको इम्प्रूव करने यस, में? यस डेफिनेटली। तो जैसे हम लोग, मैं बोल रही थी मेरी कजन को पीसीओडी था। पीसीओडी इज वन वेरी कॉमन, आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत लोग सफर करते हैं। प्लस हम लोग का ना मैरिज एज बहुत पीछे हो गया है। पहले करेक्ट। के टाइम पे हमारे पेरेंट्स बहुत जल्दी शादी करते थे, अभी 30 के पहले कोई नहीं करता है, बिकॉज नहीं। गर्ल्स ऑल्सो वांट टू बी सेटल्ड। तो उसके चलते क्या है कि यू विल डेफिनेटली सी द बेनिफिट ऑफ एक्सपेक्टिंग अर्ली बिफोर 30 और एक्सपेक्टिंग पोस्ट 30। या। तो उससे क्या है कि अगर आप योगा करते हैं तो आपका एक तो जो पेल्विक मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग होता है। वो आपके पेल्विक मसल्स इज कनेक्टेड टू योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट हेल्प्स इन कीपिंग देम स्ट्रांग। आपका हॉर्मोन्स इज इन कंट्रोल, हार्मोन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पीसीओडी हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, हॉर्मोन्स कंट्रोल पे है। उसके बाद आपका एग का हेल्थ, यूटरस का हेल्थ, एवरीथिंग इज वेरी इंटीग्रल। तो वो सब मैनेज करता है योगा। अलग अलग एक्सरसाइजेस है। मैं खुद जब कंसीव करना था मुझे, मैं जब प्लान करी थी कंसीव करना, सो देयर वर मल्टीपल थिंग्स दैट आई डिड। प्राणायाम है, मुद्रास है कि ऐसे ऐसे मुद्रास के हाथ रख के वी कैन प्रैक्टिस ब्रीदिंग। आसनास है, बहुत सारे आसनास है। सो द मोर यू कीप प्रैक्टिसिंग, उसके बेनिफिट्स आएंगे। अब खाना समझ लीजिए, अब जब खाते हैं अगर आपको वो खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, या फिर आप आधे मन से खाते हैं, वो आपके हेल्थ में नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। पर आप खुशी खुशी खाइए, जो भी खा रहे खुशी खुशी खाइए, मन को खुश रख के खाइए, वो आपके अंदर पॉजिटिव ही इफेक्ट लाएगा। यस। तो उसी तरीके से योगा ऑल्सो वर्क्स लाइक दिस, यू नीड टू हैव द फेथ एंड कॉन्फिडेंस कि होगा, एंड योगा से होगा। योगा से होगा, राइट राइट। तो व्हेन वी आर प्लानिंग टू कंसीव, हम्म। तब हार्मोन्स का भी बैलेंस, मुझे लगता है योगा उसमें भी काफी हेल्प यस, करता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा। और नॉट जस्ट द फीमेल्स, एक्चुअली इट्स ऑल्सो सजेस्टेड कि मेल्स भी योगा करें ताकि उनके स्पर्म हेल्थ बेटर हो। सो अगर आप एक्चुअली प्लान कर रहे हैं, देन डेफिनेटली देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि योगा कुछ प्रॉब्लम है तो वो ठीक करेगा, यू गो फॉर अ करेक्ट। डॉक्टर कंसल्टेशन। डॉक्टर्स ऑल्सो जो भी, अगर अगर इशू हो रहा है, इन केस इशू हो रहा है, डॉक्टर जो भी कंसल्ट कर रहे हैं फॉलो दैट। प्लस योगा से भी करना है ना, क्या दिक्कत है, मतलब इट्स योर बॉडी, कोई असिस्टेंस नहीं चाहिए, कुछ देख लिया शुरू कर दिया, दोनों मिलके कर रहे। इट विल हेल्प इन द बॉन्ड ऑल्सो बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, दैट दे आर स्पेंडिंग सम टाइम टुगेदर फॉर देयर ओन हेल्थ, दैट विल बी वेरी एनकरेजिंग ऑल्सो, पॉजिटिव एक इफेक्ट आता है इन देयर हाउस। करेक्ट। परमिता जैसे एक बहुत बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, मिसेस रुजुता दिवेकर। तो वो हम्म। कहती हैं कि जब भी आप कंसीव करने का प्लान करते हो, उससे 1 साल 2 साल पहले अपने हम्म। हेल्थ का ध्यान रखना स्टार्ट कर दो। तो यस। जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, हाउ इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग द हार्मोन्स इन वुमेन, तो ऐसे हम्म। कौन कौन से खास आसनास हैं या कुछ मेडिटेशन है या आपके जो प्रोसेसेस हैं जिनको हम्म। हमको थोड़े दिन पहले से करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जो आपकी ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ध्यान में और अच्छे से टेक केयर करेगा? ओके, तो जैसे ना एक मुद्रा है, मैं आपको बताती हूँ। सो यस। देयर इज दिस मुद्रा, लेट मी शो यू, इफ यू आर एबल टू सी, इट्स लाइक दिस। इट हम्म। लुक्स लाइक अ vulva, हम्म। राइट? सो प्लेसिंग इट क्लोज टू योर पेल्विक एरिया, इस पे अगर आप मेडिटेशन करते हैं, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रेंथ इन योर पेल्विक एरिया। इसके अलावा बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं, बटरफ्लाई पोज इज वेरी हेल्पफुल। देन नारी शोधना जो ब्रीथिंग है, या अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नोज ब्रीदिंग, दैट हेल्प्स इन मैनेजिंग द हॉर्मोन्स। तो उससे क्या है कि जो बॉडी का हम लोग का कोल्ड और हॉट सेंसेशंस है, वो बैलेंस में रहता है, हमारा फुल बॉडी बैलेंस में रहता है। सो दीज आर लाइक फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू। इवन इन माई पेज एक्चुअली आई पुट अ सेपरेट हाईलाइट, जिसमें आप क्या क्या कर सकते हैं बिफोर प्रेगनेंसी, सारे है उसमें, यू कैन ओके। ईजिली फॉलो दैट। अगर तुम आपको सिखा है ना, उसको ऑलरेडी वो नॉलेज है, आप खुद से करोगे, आपको नहीं पता होगा शायद कि आपका पोस्चर सही है कि नहीं, अलाइनमेंट सही है कि नहीं, कोई भी चीज़ आप अच्छे से करोगे तो उसका पॉजिटिव बेनिफिट्स आपको मिलेगा। अगेन आई से, हर एक का बॉडी बहुत अलग होता है। हम्म। मुझे
कोई चीज करने में जितना टाइम लगता है किसी और को शायद उससे कम टाइम में हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी सबकी अलग होती है, स्ट्रेंथ अलग होती है, इंटरनल हम लोग का मतलब किसी किसी का होता है कि राइट साइड, दोनों तरफ ही हम लोग के बराबर नहीं होते तो वो क्या बोले। कभी कभी किसी का राइट साइड एग्जैक्टली। इज स्ट्रोंगर देन द लेफ्ट, कभी कभी किसी राइट। का राइट साइड इज मोर फ्लेक्सिबल देन द लेफ्ट। सो इन आवर बॉडी ओनली इफ वी आर नॉट in the same range, so everyone is different, every body is different. um, Anything that I say is never a general commitment for everyone, ठीक है? तो करेक्ट। वो हमेशा किसी के गाइडेंस में अगर आप करोगे तो वो आपको अच्छे से बता देंगे कि आपके बॉडी के हिसाब से क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए। ट्रू। और जो पीरियड साइकिल के दौरान बहुत सारे मिथ्स हैं कि हमको योगा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ उल्टे पोस्चर्स नहीं करना चाहिए, बेंड नहीं करना चाहिए, तो इन सब में आप क्या मानते हो? मैं एक्चुअली मानती हूँ आपके ऊपर है, अगर आपको करते वक्त अनकंफर्टेबल लग रहा है, तबीयत खराब हो रहा है, तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। प्राणायाम कर लो, नारी शोधना इज वन प्राणायाम। नारी शोधना मतलब उसमें सांस रोकना पड़ता है, आई वुड रादर से अनुलोम विलोम, उसमें सांस रोकना नहीं पड़ता, आप इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल। अनुलोम विलोम इज वन थिंग विच यू कैन डू 24/7 ऑल सीजन्स। कुछ कुछ प्राणायाम है जो हम लोग समर में करते हैं, कुछ कुछ प्राणायाम है जो विंटर में करते हैं, बट ये एक है जो हम लोग फुल ईयर कर सकते हैं और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक मैं मतलब मेरी मम्मी से ही बता सकती हूँ, शी यूज्ड टू सफर फ्रॉम माइग्रेन, हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 दिन उनको रहता ही था, बट बिकॉज ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम अभी उनका काफी कंट्रोल है। ये नहीं कि एकदम ही नहीं होता है, इफ शी टेक्स टू मच वर्क इन वन डे तब तो आई कांट हेल्प इट, बट देन यस, बहुत ही ज्यादा अभी कंट्रोल में है। तो ये जो प्राणायाम है ये आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें आप पीरियड्स में भी ओके। कर सकते हैं, ये दिस इज वन। हम्म। अभी आपने बात किया इन्वर्जन्स का। अभी वाई वी से कि इन्वर्जन्स नहीं करना चाहिए इज बिकॉज जब साइकिल चलता है आर एनर्जी इज डाउनवर्ड्स, यस। ओके? वी शुड डू थिंग्स विच विल हेल्प दैट आर एनर्जी गोज डाउन, बट हम लोग ओके। इन्वर्जन करते हैं, आर एनर्जी इज ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? इसलिए बोलते हैं, बट इट डजेंट मीन देयर इज नो रूल, सेट रूल कि नहीं करना है। इट इज ऑल ऑन यू, इफ यू आर एबल टू डू इट एंड देन स्टिल हैव अ नॉर्मल साइकिल विदाउट प्रॉब्लम्स विदाउट ट्रबल्स, गो फॉर इट। कुछ लोग ओके। नहीं करते हैं, पूरे पीरियड साइकिल नहीं करते हैं, वो भी अच्छा है, जो तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छा लगे वो करो। Yeah. And as you told, no, not everybody is same, and not यस, everybody reacts to the same situation in similar manner. एग्जैक्टली तो हो सकता एग्जैक्टली है आपको वो पोस्ट करने में खुद ही से ही बॉडी बोलने लगे कि नो, आई एम नॉट कंफर्टेबल, एग्जैक्टली, तो हाँ, ऑब्वियसली वो नहीं करना है फिर हमको नहीं उसको। करना है। हाँ, आपने अभी कर दिया, लेट्स से नॉन पीरियड डेज पे आप बहुत अच्छा सा शीर्षासन कर लेते थे, तो आपने सोचा पीरियड डेज पे मैं कर लेती हूँ, किया, अच्छा नहीं लगा, नोजिया फील हुआ, डिजी लग रहा है, तो वाई टू लेट योर बॉडी गो ट्रू। थ्रू दैट, रेस्ट दो अपने बॉडी को। यस। है ना? तो उसी एग्जैक्टली। हिसाब से इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। परफेक्ट। Yes. And now, Paramita, coming to, next level of our podcast, which is pregnancy. हाँ, So, अभी हम लोगों ने कई सारे फिल्म स्टार्स को देखा, क्योंकि हमारे इंडिया में ना फिल्म स्टार्स का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। यस। लोग ना टॉप योगा इंस्ट्रक्टर का नाम पूछो या टॉप योगा जो प्रीच करते हैं उनका नाम पूछो तो वो नहीं पता रहेगा, बट टॉप फिल्म स्टार किसने योगा करके क्या दिखाया, प्रेगनेंसी में हाँ, कौन योगा करती है, ये सबको बच्चे बच्चे को पता रहेगा। करेक्ट तो करेक्ट। आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल गया है कि योगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हम्म। है ना? सो थैंक्स टू द बॉलीवुड की कुछ पॉजिटिव भी प्रोपोगेट हो रहा है सोच हाँ, अपनी सोसाइटी में। सो योगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में आपका क्या कहना है, या फिर प्रिकॉशंस भी आप जरूर बताना कि उस हाँ, दौरान क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बिकॉज हम्म मैं जब एज अ व्यूअर देखती हूँ तो मुझे वो बहुत ही रिस्की लगता है, मतलब सबका अपना अपना हम्म परसेप्शन होता है। तो शायद हम्म मैं हिम्मत नहीं करती, मुझे कोई बोलता कि शीर्षासन कर लो तुम 8th मंथ में, तो बट पीपल आर डूइंग। यस। यस, तो आप क्या कहना चाहोगे? तो उस वो डिपेंड करता है कि आप कितने फिट थे बिफोर प्रेगनेंसी। हाँ। लेट्स से यू हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 7-8 years या फिर उससे भी ज्यादा, तो आप प्रेगनेंसी में योगा करोगे तो आपको है वो कॉन्फिडेंस कि मैं इतना कर सकती हूँ। पर आप अगर शुरू ही करोगे प्रेगनेंसी में उस, तो आपको डर लगेगा कि इतना मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो उसी हिसाब से जो भी आपके इंस्ट्रक्टर है, कभी भी आई वुड रिक्वेस्ट प्रेगनेंसी में विदाउट इंस्ट्रक्शन नहीं करना है, अनलेस यू हैव प्रैक्टिस्ड ओवर द इयर्स। नया आपको स्टार्ट करना है, यू शुड ऑलवेज ज्वाइन क्लासेस, अंडर गाइडेंस ही करना चाहिए।
देन सेकेंडली यू शुड गेट ग्रीन सिग्नल फ्रॉम योर डॉक्टर, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जस्ट बाय प्रेगनेंसी ऑल्सो। ठीक है, जैसे कि प्लेसेंटा का पोजीशन हो गया, बेबी का पोजीशन हो गया, ये सब भी चीज़ें होती है। फिर उसके बाद फर्स्ट 3 मंथ्स जैसे बहुत रिस्की रहता है, तो उस टाइम पे जो भी प्रैक्टिस होता है बहुत लाइट प्रैक्टिस होता है। मोस्टली इट इज़ जस्ट अबाउट बाकी के बॉडी पार्ट स्ट्रेच करना या फिर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना, बिकॉज प्रेगनेंसी में जॉइंट पेन्स ये सब हो सकता है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स इज ऑल अबाउट वेरी लाइट प्रैक्टिस। उसके बाद ही अंडर गाइडेंस यू गेट इनटू अ बिट इंटेंस। उस हिसाब से तो इट्स वो रिस्क फैक्टर इज ऑल, मतलब वो रिस्क फैक्टर कट जाएगा अगर आप किसी के गाइडेंस से करते हैं। बेस्ट इज ऑफलाइन। ऑनलाइन से भी आई वुड सजेस्ट कि आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करो। एंड इफ मतलब हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपने इतने सालों से प्रैक्टिस किया है, तो देन गो फॉर इट। अगर आपको डॉक्टर ग्रीन सिग्नल नहीं देते देन प्लीज अवॉइड, बिकॉज उनको ज्यादा अच्छे से पता है कि आपका बॉडी यस किस यस स्टेट। बहुत डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप एक्सरसाइज करो। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। हम लोग बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वही हो गया है योगा के साथ एक्चुअली। जब तक हम लोग के घर वाले करते थे तब तक हम लोग उसको कदर नहीं दिए, जब वो बाहर जाके वेस्टर्नाइज हो गया तो अभी सब कोई करने लग गए हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो देयर आर आप, मेनी थिंग्स जो हमारे हाँ, मेडिटेशन में पहले से हैं, वो यस, वर्ड्स अभी फॉरेन में इंग्लिश वर्ड्स आ गए तो लोग उसको हाँ। हाय 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 ये बोलने और लगे। अभी वहां से और भी कितने कितने आगे हॉट योगा हो गया, बियर योगा, पता नहीं क्या क्या नाम के योगा लेकर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है इन इंडियन ट्रेडिशन, बट एनीवेज वो उनकी बातें हैं। यस। तो अगर हम लोग देखते हैं ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ डक वर्क। डक वर्क इज समथिंग विच इज सजेस्टेड फॉर फीमेल्स इन द लास्ट ट्राइमेस्टर, ताकि ओके। लेबर के लिए इजी हो। हाँ। डक वर्क क्या होता है? जब हम लोग झाड़ू देते हैं बैठ के, तो जिस तरीके से चलते हैं वही डक वर्क है। यस तो हमारे पेरेंट्स आप देखिए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को देखिए, कभी सुना ही नहीं कि ये कॉम्प्लिकेशन वो कॉम्प्लिकेशन, तब तो नॉर्मली होता था सबका। यस। राइट, और सरवाइव भी हो जाते थे उनके बॉडी। मतलब हमारे एंसेस्टर्स के कितने कितने बच्चे होते थे। सिबलिंग्स भी बहुत होते थे, राइट। बहुत सिबलिंग्स होते थे। अभी हम लोग एक में ही सोचते कि नहीं नहीं बॉडी इज डन और नहीं हो हाँ पाएगा। हाँ डॉक्टर भी सजेस्ट करते कि एटलीस्ट कीप अ 3 इयर्स गैप। हाँ। वाई? बिकॉज रिकवरी स्लो हो गया है हम लोग का। हम लोग लेजी हो गए हैं ज्यादा, बॉडी इज लेजी। नॉट जस्ट दैट, हम लोग का मतलब एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर अलग है, मैटर्स, यस। खाना अलग है, खाना इज नॉट दैट प्योर। बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स ना, मतलब हम लोग के रूटीन में योगा हैज कम मोर इम्पोर्टेंटली। नहीं तो जो हम लोग हाउस होल्ड चोर्स करते थे, अगर हाउस होल्ड चोर्स करें तो वो भी योगा ही है। करेक्ट करेक्ट। बट बिकॉज हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम करते हैं, दूसरी चीजों में बिजी रहते हैं, ज्यादातर हम लोग बैठे रहते हैं लैपटॉप के सामने। तो रैदर डू दैट 1 आवर ऑफ योगा प्रैक्टिस, तो वो आपको फायदा करेगा। यस। एंड टेक्नोलॉजी भी वैसी हो गई है ना। पहले वी यूज्ड हम्म। टू गो टू पीपल, वॉक करते थे, मिलते थे। अभी यू एग्जैक्टली। पिक अप अ मोबाइल, यू फिक्स अ जूम कॉल एंड बस एग्जैक्टली। अपने भाइयों भाइयों बहनों से भी हम ऐसे ही मिल लेते हैं। ऐसे ही मिल लेते हैं। प्लस झाड़ू भी, अब यूके में वी डोंट हैव मेड्स, बट वैक्यूम हाँ। क्लीनर है, कोई झुक के नहीं लगाता। वी हैव एग्जैक्टली। एवरीथिंग। सो हाँ। टेक्नोलॉजी का ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी ह्यूमन रेस पे बहुत पड़ा है एग्जैक्टली। ग्रेजुअली। सो यस, जैसा कि पारोमिता ने कहा, हम ये पॉइंट भी लाना चाह रहे थे कि बहुत अच्छा है योगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट इट शुड बी डन अंडर गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर ओनली। एंड होता है ना, योगा के बारे में लोगों ने प्रमोट प्रमोट भी किया है, सही भी है कि योगा के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बट प्रेगनेंसी एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है जब हमें बिना पारमिता ने बार बार अपने हर सेंटेंस में ये बोला कि डॉक्टर ग्रीन सिग्नल दे, तभी वी शुड गो अहेड विद हम्म। योगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम्म। सो थैंक यू फॉर दैट। यस। थैंक यू। उसमें भी जैसे अभी क्या है कि जब हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में होते हैं, तो बाय सेकेंड ट्राइमेस्टर वी गेट टू नो कि प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है। यस। ऑलवेज इट स्टार्ट्स विथ लो, बट देन इवेंचुअली ओवर द मंथ्स इट मूव्स अप। बट किसी किसी का लो रह जाता है, तो उसमें भी हम लोग के बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो जब आप गाइडेंस के अंदर करोगे, गाइडेंस विद द योगा इंस्ट्रक्टर एज वेल, नॉट जस्ट अ डॉक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर ऑल्सो, तो वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या इश्यूज है। यू शेयर दैट विद द पर्सन। उसी हिसाब से दैट पर्सन विल मॉडिफाई द प्रैक्टिस। तो जैसे कुछ कुछ है, जैसे गॉडेस पोज हो गया, या फिर मलासना हो गया, जिसमें हम लोग स्क्वाट करते हैं, इधर सुमो स्क्वाट कर रहे हैं या फिर लो स्क्वाट कर रहे हैं, तो ये अवॉइड करते हैं। ठीक है, ओनली इफ यू आर इन द लास्ट ट्राइमेस्टर देन वी कैन गो फॉर दैट। लास्ट ट्राइमेस्टर मतलब आखिर में, वो लेट्स से 8th मंथ 9th मंथ, उस टाइम पे
एंड ऑफ 8th मंथ या स्टार्ट ऑफ 9th मंथ उस टाइम पे, बट otherwise it is not suggested. जबकि अगर if you have a normal placenta position then you can practice goddess pose also यस। during that time. एंड वाई वी डू दिस, सो हम लोग का जो बॉडी होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ यूटिलाइज हो रहा है उस टाइम पे, आपका जो कोर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है टू बिल्ड द बेबी। उसके बाद आपका ब्लड बहुत यूटिलाइज हो रहा है, आपके जॉइंट्स बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं, देयर इज कैल्शियम, देयर इज मेनी थिंग्स विच इज गोइंग, उसके ऊपर से आप इतने सारे सप्लीमेंट्स क्यों लेते हैं हम लोग, बिकॉज वो सब जा रहा है बेबी के पास, तो एटलीस्ट मेरे पास तो हो ताकि मैं भी भेज पाऊँ। करेक्ट। तो जब हम लोग ये सब एक्सरसाइजेस करते हैं ना, तो हम लोग यही मेंटेन करते हैं। इट्स नॉट जस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप योगा करोगे ना, जो आफ्टर प्रेगनेंसी का रिकवरी है वो फास्टर होता है। यू डोंट लूज दैट मच ऑफ अ स्ट्रेंथ विच अदरवाइज यू वुड लूज। या एग्जैक्टली। हाँ, मतलब ये मेरे पर्सनली मैंने फेस किया है, एंड आई हैव सीन दिस विद मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर आल्सो योगा प्रैक्टिशनर्स, दैट देयर रिकवरी हैज बीन वेरी फास्ट कंपेयर्ड टू फीमेल्स हु हैव नॉट प्रैक्टिस और हु आर नॉट योगा करेक्ट। प्रैक्टिशनर्स इन जनरल, ऐसे। तो वो इस तरीके से मुझे योगा का बेनिफिट लगता है प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा। Yes, that's what you said in the starting. It's a process. It's यस। not a quick thing. नो। Yes, तो correct. पारमिता, जैसे हमने ये बात की कि अगर आप पहले से योगा कर रहे हो तो आप प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपके पास पूरी नॉलेज है, राइट? हम्म। बट आजकल सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से जिनकी पहले उतनी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रही है, या उन्होंने कभी योगा किया या बहुत साल पहले किया, बट हम्म। वो आफ्टर प्रेगनेंसी और जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, उसका जो एक एक्साइटमेंट रहता है, उसमें हम्म। लगता है कि अब प्रेगनेंसी हमने कंसीव कर ली तो हम अपना पूरा लाइफस्टाइल हेल्दी कर ले, हम हम्म। हेल्दी खाएं। तब हम हम्म। लोग बहुत केसेस पे प्रेगनेंसी योगा स्टार्ट करते हैं, हम्म। राइट? तो हम्म। उनको, जैसे कि आपने गाइड किया कि इंस्ट्रक्टर लेड करिए आप, बट हम्म। उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो जस्ट आउट ऑफ एक्साइटमेंट करें कि नहीं करें, आपका क्या उसमें? डेफिनेटली करे, बिकॉज डेफिनेटली अंडर करें, ओके। गाइडेंस करे। और योगा के उस मतलब ये प्रेगनेंसी में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं देन इट इज नॉट जस्ट कमिंग एज अ स्टाइल क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो बिकॉज आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पे भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट Mhm. पड़े। तो इसलिए आपको अगर मन हो रहा है, एक्साइटेड है आप अपना हेल्थ चेंज करना, लाइफस्टाइल चेंज करना, आप स्टार्ट कीजिए व्हेन एवर इट हिट्स यू, जस्ट गेट इन टू इट। हाँ, अभी आप जब जाओगे इंस्ट्रक्टर आपको बिगिनर एक्सरसाइजेस देंगे तो आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए, धीरे 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 धीरे। पोस्ट डिलीवरी भी आपका बिगिनर लेवल का ही एक्सरसाइजेस रहेगा, धीरे धीरे धीरे। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करते हो, वेल एंड गुड। देखिए, ये तो कुछ है नहीं कि मतलब हमेशा, इट्स नॉट अ लाइफ टाइम मेंबरशिप वाला सीन विथ योगा, Correct. एंड इट्स ऑल ऑन एन इंडिविजुअल। उसे जितना दे, उसे हम लोग बस दे सकते हैं, हम लोग बस बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, आज के ज़माने में किसको नहीं पता है कि योगा बहुत फायदेमंद है? सबको पता है। सबको कितने पता है। लोग करते हैं? बस बैठ के मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, अरे वाह इसने बहुत अच्छा पोज कर दिया, उसने बहुत अच्छा पोज कर दिया, बट नहीं कर रहे हैं बिकॉज एक तो मोटिवेशन की कमी होती है। तो ये जाए, अब आपने जो पूछा ना कि प्रेगनेंसी टाइम पे वो मोटिवेशन आ गया, तो भाई आ स्टार्ट कर गया। लो, बहुत बढ़िया है। सही बात है, वेरी गुड पॉइंट। करेक्ट। सो कमिंग टू लास्ट फेज ऑफ आवर पॉडकास्ट, हम्म। एंड जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है फेज, बीइंग अ मदर ऑफ अ चाइल्ड, कि हम्म। प्रेग्नेंट जब तक होते हैं, मेरी और कृति की भी इस बारे में पहले बात हो चुकी है, कि जब तक हम प्रेग्नेंट होते हैं, जब हमारी डिलीवरी हो रही होती है, तब तक सबका फोकस हम पे होता है, हम्म। राइट? ये खा लो वो खा लो, बाद में भी होता है, बट बाद हम्म। में फोकस जो होता है वो सुपरस्टार कोई और हो गया होता है। हाँ हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं फिर ये होता है कि अभी हम कौन से बच्चे हैं, हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, ऐसा हो हम्म। जाता है। हम्म। बट हम तब मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से, सभी लेडीज मुझे इसमें यस। हाँ बोलेंगी, अग्री करेंगी, कि तब हम यस। मेंटली भी उतने स्ट्रांग नहीं रह जाते हैं। कहीं यस। ना कहीं हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें मेंटली भी बहुत हेल्प की जरूरत होती है, और फिजिकली तो होती ही होती है, हम्म। क्योंकि हमने बॉडी का एक चंक लूज किया होता है, हम्म। राइट? सो योगा पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर पोस्ट नेटल योगा का क्या हेल्प हो सकता है, फिजिकल और इमोशनल या मेंटल हेल्थ दोनों के लिए, आप बताइए। ओके, मैं पहले फिजिकल एस्पेक्ट बताती हूँ यस बिकॉज इमोशनल विल टेक टाइम। यस, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कितने यस। लोगों को जॉब अपना छोड़ देती हैं, वो सोचती हैं कि यस। जॉब ही सबसे बड़ा प्रेशर है, हाँ, बट प्रेशर कुछ और होता है, अपना कुछ खुद और का ही होता है। प्रेशर होता है। जी। डेफिनेटली। तो प्रेगनेंसी मतलब इफ यू आर प्रैक्टिसिंग योगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माय पर्सनल पॉइंट वाज, मतलब मैंने क्या बेनिफिट फेस किया यस। वाज, आई हैड एन इमरजेंसी सी सेक्शन
ओके, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली रेडी, मेरा फुल नॉर्मल होता. एंड एक चीज होता है ना, आई हैड गॉन थ्रू दैट आफ्टर डिलीवरी. ओके, आई विल कम टू आफ्टर डिलीवरी लेटर. तो आई वॉन्टेड टू हैव अ नॉर्मल डिलीवरी एंड सब कुछ स्मूथली चल रहा था. डॉक्टर ने भी सब, एवरीथिंग वाज फाइन. डॉक्टर वाज लाइक, तुम रेडी हो ना, तुम फिर बीच में मत बोलना कि नहीं नहीं नहीं. I'm like, नहीं नहीं नहीं, आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट, मुझे Yes. नॉर्मली करना है. बट डेस्टिनी, तो आई गॉट अ हाई फीवर, मुझे 102 फीवर आ गया था. एंड देन डॉक्टर वाज लाइक, आई नो तुम बहुत कोशिश कर रही हो फॉर नॉर्मल, बट वी कैन नॉट रिस्क इट, है ना, हेल्दी बेबी इज अ बेटर ऑप्शन. Correct. तो आई वाज लाइक ठीक है, आई वेंट फॉर इट. एंड देन आई हैड द बेबी. माई रिकवरी वॉज क्वाइट स्मूथ. मतलब सी सेक्शन में मैं एक्चुअली कुछ दिनों पहले मुझे किसी से बात हो रहा था, मुझे वो बोल रही थी कि अरे मेरी मम्मी तो बोलती है कि अगर सी सेक्शन करो तो बॉडी कमज़ोर हो जाती है, फिर ओवर द पीरियड 10 साल में भी जाके तुमको बैक पेन रहता है. आई ऐसे, देखिए मैं इसलिए ना, मैं नहीं बोल सकती कभी. मतलब आई थिंक योगा हैज टॉट मी दैट कि मैं कभी डायरेक्टली नहीं बोल सकती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. तो आई वॉज लाइक नहीं, मुझे नहीं हुआ, बिकॉज अगेन एवरी बॉडी इज डिफरेंट. सो माई रिकवरी वॉज लाइक, आई टेल यू, आई हैड द सर्जरी. उस दिन तो कंप्लीट बेड रेस्ट. नेक्स्ट डे द डॉक्टर केम एंड टोल्ड मी दैट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे. एंड आई एक्चुअली डिड. आई हैड द पेन, मतलब बैठ के उठने से और बैठे, सॉरी, सोते हुए उठने से और बैठे हुए सोने में आई हैड द पेन. बट देन चलने में आई डिड नॉट फेस डिफिकल्टी. मैं चल पा रही थी, धीरे धीरे करके चल पा रही थी. इतना कि मुझे नर्स ने आके बोला, यू हैड अ सी सेक्शन और यू हैड अ नॉर्मल डिलीवरी. दैट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी या एट दैट टाइम. दूसरे दिन तो हम उठ भी नहीं पा दूसरे रहे थे दिन. सी सेक्शन में. सो दैट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट. फिर तो उसके चलते आई हैव रियलाइज दैट माई रिकवरी वॉज मच बेटर फिजिकली. आई वॉज एबल टू डू अ लॉट ऑफ टास्क. मैं घर आ गई थी इन द फोर्थ डे. एंड देन आई वॉज एबल टू मैनेज माई बेबी कम्प्लीटली. मुझे इतना डिफिकल्टी नहीं हुआ जो मैं नॉर्मली सुनती हूँ. एंड टॉकिंग अबाउट बैक पेन, टच वुड, no back pain till now. Yeah. हम्म. That is the physical side of it. And I've seen this, if you, since I had been, maybe because I had been into fitness and then I practiced yoga during pregnancy, maybe it contributed with my quick recovery क्विक physically. रिकवरी. यस हाँ. यस यस. बिकॉज मैं याद करूँ तो मुझे 1.5 साल भयंकर बैक एक रहा था. भयंकर हम्म. बैक एक 1.5 साल बिल्कुल अनबेरेबल. हाँ हाँ हाँ. वो मतलब मैंने बहुत सुने थे इसके बारे में, हम्म. तो टच वुड. गुड Like गुड. I did not go through this till date. यस. I never know when something hits. नो नो नो. um, on a mental level अगर बात करें तो during pregnancy I got this group of females who were all in the same journey with me. थोड़ा आगे पीछे मंथ्स का, तो हम लोग का एक ग्रुप हो गया था. और हम लोग को कुछ भी तकलीफ होता था, हम लोग एक दूसरे को बोलते थे. चाहे वाओ. अरे यार बॉडी में ना ये हो रहा है, तो सामने वाला बोलता था अरे हाँ हमें भी हो रहा है, तो हमें ना अकेला नहीं लगता था. दैट्स नॉर्मल. दैट वाज वन ऐसा थिंग, लगेगा कि दैट्स घर नॉर्मल. ही नॉर्मल है. हाँ, और हम लोग इस चीज का मजाक ही उड़ाते थे कि यार कुछ भी बोल दो, वो नॉर्मल ही है, किसी ना किसी को तो हो ही रहा है. दांत में दुख रहा है, गम्स में दुख रहा है, वो भी नॉर्मल है. तो हर चीज, मतलब एवरीथिंग वाज नॉर्मल. तो वो जो ग्रुप था वो एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट ग्रुप था. एंड हम लोग, मतलब अभी सबके बच्चे अभी 1 साल हो रहे, वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद द ग्रुप. हम लोग अभी भी शेयर करते हैं. कोई भी हस्बैंड से परेशान है, शेयर इट. मदर इन लॉ से परेशान है, शेयर इट. अपने मदर से परेशान है, शेयर इट. करेक्ट. या. तो connecting with people is very important. Having that support group is very important. That group जो आप कुछ भी बोलो आपको जज नहीं करेंगे. करेक्ट. दो, हाँ, 2 दिन बाद आपको बोलेंगे नहीं कि आपने वो बोला था ना. मतलब दैट प्रॉपर फ्रेंड्स. और हम लोग सब डिस्टेंट, मतलब कोई किसी से मिला नहीं या है, एग्जैक्टली. सब ऐसे अलग अलग है, कंट्री आउट ऑफ कंट्री भी है. बट दैट हैविंग दैट सपोर्ट ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस. देन another side is meditations, breathing. That will help. Actually, post if it's your first kid, बहुत टाइम लग जाता है to convince yourself that it's a new role. या. Now there is someone who is completely your duty, your responsibility. तो वो pressure कभी कभी overwhelming हो जाता है. To be very honest, because I am like an open book. I say I have cried after having baby. I don't know why I was crying, but I cried and I felt better after crying. So if like letting out emotions is always good. यस. Huh? And connecting with yourself. How do you connect with yourself? Just sit in an empty space. Just close your eyes. Just focus. That's it. किसी चीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं. Just focus on your breath.
Inhale and exhale. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो देयर आर मल्टीपल पॉजिटिव एफर्मेशन जो हम लोग खुद को बोलते हैं। हम लोग के ना बहुत डाउट्स होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी डाउट्स होते हैं कि मैं सब ठीक कर रही हूँ कि नहीं, मेरा बच्चे हेल्दी हो रहा है कि नहीं, सब हाँ खा हाँ, रहा है कि नहीं, अच्छे से उसको ब्लड पहुंच रहा है कि नहीं, ग्रोथ सही हो रहा है कि नहीं। आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो, स्पेशली विद फर्स्ट चाइल्ड, कितने डाउट्स है, कितने पैनिक बहुत सिचुएशंस ज्यादा। हो जाते हैं। बहुत हिचकी आ रही है, इतने देर से हिचकी क्यों कर रहा है, वही एक पैनिक सिचुएशन है। तो इसलिए ये सबको बैलेंस करने के लिए ना, वो जो सिर्फ इनहेल एक्सहेल करो, काम योर माइंड, काम योर सेल्फ, वो बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। फिर उसके छोटी सी बाद बात है, छोटी सी बात बताइए आपने, बट बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, और फिर वो खुद को बोलो कि आई एम स्ट्रांग, आई कैन डू इट, इट्स इजी, इवन इफ इट्स नॉट इजी आई फिगर इट आउट। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग ना मॉम गिल्ट पे बहुत चले जाते हैं आफ्टर हैविंग अ बेबी। हाँ हाँ। यार, लेट्स से मतलब लेट्स से सिंपल सी बात, लैक्टेशन, बहुत फीमेल्स को लैक्टेशन में डिफिकल्टी होता है। हाँ। उसमें भी बहुत मॉम गिल्ट में चले जाते हैं कि यार मैं अपने बच्चे को ही नहीं खिला पा रही हूँ। ये यस। एक मॉम गिल्ट आ जाता है। तो ये सब चीजें में ना, मतलब खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट डूइंग इट, समवन शुड डू इट फॉर यू। यू शुड शेयर। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने वाले को ये प्रॉब्लम हो रहा है? ओपन होना, ओपन कन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे हमेशा लगता है इट्स बेटर टू बी ओपन टू अ स्ट्रेंजर देन समवन हुम यू नो, क्योंकि यस। वो जजमेंट फैक्टर नहीं रहता है, आज मैंने बताया कल खत्म है। तो यस। वो चीज ना, मतलब यू हैव दिस ओपन कन्वर्सेशंस। यू डोंट हैव टू ट्रस्ट, मतलब इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि अगर वो बात निकल भी गया, अगर वो जाके कल को किसी को बोल भी दे, अरे उस बंदी को ना ऐसा है, डजेंट मैटर, कोई यस। फर्क नहीं पड़ता है। यू नीड टू हैव दिस ओपन हार्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। एंड देन हर चीज को माइंड में नहीं लेना है। हम्म। आजकल क्या होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें जिस तरीके से बड़ा किया है, और आज के डॉक्टर्स जो हमें बोलते हैं, दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट। मतलब माई मॉम, शी डायरेक्टली टोल्ड मी, यार शहद क्यों नहीं चटाए हो? बट डॉक्टर्स बोलते शहद नहीं चटाना, एक हाँ, साल तक शहद नहीं नथिंग। चटाना। तो फुल कॉन्ट्रास्ट वो ओपिनियंस। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस देम। एंड वेल यू नो कि नहीं, आई विल फॉलो वट एवर माई डॉक्टर सेज, बट हम्म। इधर भी खुश रखना है, उधर भी खुश रखना है। तो कुछ टाइम ना खुद के लिए देना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। एंड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं रिलेशन में, स्पेशली विद योर हस्बैंड, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो इफ़ यू नीड टू हैव दिस कन्वर्सेशन विद योर हस्बैंड। सी, योगा इज ऑल्सो अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल. It's not just you alone. Whenever you are doing something which is keeping you happy, I feel it's yoga. If gardening is making you happy, that is yoga for you. That's my personal thing. It may not be anywhere, but उस तरीके से connecting with people also for me is something which was making me happy. That was a union because I was getting to know myself from people's eyes. यस। So ये मुझे लगा, मतलब देखिए, मैं तो बोलूँगी breathing and keeping your mind calm from the yoga prospect, but then relations, communication, um, openness, ये सब बहुत ज़रूरी है फॉर द इमोशनल एस्पेक्ट। एंड उस वो समय ज्यादा रहेगा। जरूरी हो जाते हैं। हाँ, और वो रहेगा, वो ऐसा नहीं कि शुरू के 6 महीने हुए हैं और फिर खत्म हो जाता है। वो मैंने देखा है, पीपल सफरिंग फ्रॉम पोस्टमार्टम ब्लूज इवन 3 years डाउन द लाइन। यस। बिकॉज पीपल डोंट टॉक अबाउट इट इंडिया में। पोस्टमार्टम ब्लूज और पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज अ वेरी न्यू टर्म। न्यू आज टर्म। भी वेरी न्यू, आज भी एग्जैक्टली। अगर हम लोग अपनी मम्मी को बोलेंगे, "बोले, ये क्या होता है, हम लोग के टाइम पे नहीं होता ये सब"। बस बट इट्स प्रेगनेंसी के नॉट टाइम दैट। ये खा लो, बस मेन हाँ, फोकस बस उस पे ही है। उस बस। टाइम ये खा लो, उस टाइम ये कर लो, बस। हाँ, और फिर बहुत सारे मिथ्स भी है, जैसे डबल खाना। तो my weight gain also was not much during pregnancy because I was not overeating. Overeating is not good. I was just eating healthy and small meals in regular intervals. बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, अगर आप सब कुछ सुनने लग गए तो आप ही फेस करोगे इशू। यस। सो यू कॉन्ट्रेरी जस्ट भी टेक, बोलते हैं, कॉन्ट्ररी भी कॉन्ट्रेरी। बोलते हैं, हाँ। तो यू जस्ट टेक कि हाँ, इसमें से ये आपको जस्टिफाइड लग रहा है, ये आप कर सकते हो, गो फॉर इट। नहीं लग रहा है, कुछ नहीं, हाँ बोल दो, खत्म कर दो, अपना तो नहीं करना है बस। वही चीज है, एवरीवन स्टेज हैप्पी। फ्रेंड्स, जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, इस टॉपिक पे तो खास करके तीन लेडीज और तीन माएं अगर बात करें ना, तो हम दिन भर बात कर सकते हैं, 4 दिन यस। तक बात कर सकते हैं। सो थैंक यू पारोमिता। थैंक एंड यू। आज का टॉपिक जो था हमारा, योगा इन बिफोर योर प्री नेटल थिंग, देन डिलीवरी, देन पोस्ट नेटल थिंग। सो ये
आज मेन फोकस उस पर ही रखा। मे भी आने वाले पॉडकास्ट में भी आप आएंगे तो ऐसे नई नई चीजें और भी हमको सीखने को मिलेंगी आपसे। सो थैंक यू पारमिता, एंड आई होप कि आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत लोगों को हेल्प करेगा, एंड हेल्प करेगा उनकी हेल्थ के लिए भी, राइट, और प्लस कई सारे डाउट्स भी उनके दूर करेगा खुद के बारे में, योगा के बारे में, और जो महंगे महंगे वो पैकेजेस लेने के सोच रहे हैं जिम के उसके बारे में भी, कि पहले खुद को जानना, पहले एक स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। मैं एक चीज आपको सबको यही बताती हूँ कि यस, जैसा कि परमिता ने बहुत पहले कहा था कि हमको योगा हम लोग बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, तो वैसा ही हम लोग के साथ भी लाइफस्टाइल्स में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि हमको योगा शुरू से पता है कि योगा बहुत अच्छा है और करने के बहुत सारे फायदे हैं, बट हम पता नहीं किस चीज का वेट करते रहते हैं कि हमको वो मोटिवेशन नहीं मिलता और हम अपने लाइफस्टाइल में उसको एम्बेड नहीं कर सकते। यस, तो आज बहुत सारे ऐसे भी उन्होंने कुछ सस्टेनेबल तरीके या जो मिथ्स हैं वो थोड़ी सी क्लियर करें कि आपको जिस टाइम मोटिवेशन आए उस टाइम आप स्टार्ट करो। और थैंक यू पारुमिता, थैंक यू सो मच, थैंक यू कृति फॉर योर टाइम। एंड गाइस, बिफोर गोइंग आई से अगेन, प्लीज आप पारुमिता का पेज इंस्टा पे जाके जरूर चेक करना, एंड इट विल हेल्प यू गाइस, इट विल हेल्प यू। एंड पारुमिता, कुछ आप और कहना चाहोगे व्यूअर्स से हमारे? मैं बस बोलूंगी, अभी आप अगर आप सोफा या बेड पे बैठ के देख रहे हैं तो कल से रूटीन सेट कर लीजिए कि योगा करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू पारुमिता, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू टेक सो केयर, मच। बाय थैंक बाय। यू।